Now I am go for example. Speaker ଏତିକି ଅଛି। ଏତିକି ତ ପୁରା full sound ଅଛି। ସବୁ high ଅଛି। We go for example method overriding. So in inheritance, so already we know how to pass the inheritance by using of extends keyword. Okay. Now when you define a variable, extends keyword for passing a inheritance, xyz, then class abc extends xyz. Here class xyz is called parent class. Class abc is called child extends keyword is pass inheritance. Used to pass the inheritance. Okay. And the work of extends keyword is used to pass the inheritance. It is inheritance. मतलब XYZ is a parent. Parent class रो हमें functionality copy करिवा कोठी child class. ABC ला child class. Okay. Child class. Child class. Child class. ଏଟାକୁ sub class भी कहि परिबा तो child class कहि परिबा can call as sub class or derived class. It is called as the parent class
कॉलेज for class no bracket दीजिए जेड़ा मतलब bracket दीजिए सब bracket दीजिए बेटा जान then we comes to access specifier. Access specifier. So access specifier is used to give a accessibility to the member to the other class. आमे जो variable किंबा function आमे use करूचे से variable और function आमे कोठी use करी परिबा को जगह रे use करी परिबा. So it is giving a accessibility. Okay, it define the accessibility to the member that is used in other class. आमे को जगह रे use करी परिबा को class रे use करी परिबा को package रे use करी परिबा सेते में आमे access specifier define करू. बुझियला is used to giving access to the member of class. Be used in other class. So there are four type of access specifier we are using. One is public. When you define a public access specifier to a member, हमें गोटे variable किंबा function को जब public define करिवा ताले से सब जगह रे use करियो सब class रे use कर परियो सब package रे भी use कर परियो by defining this access specifier, the members are accessed access and packages. सब क्लास और पैकेजेस भितर यूज करि परिबा और होची प्राइवेट बाय डिफाइनिंग गोटे मेंबर गोटे वेरिएबल का गोटे मेंबर नहीं सब वेरिएबल सब मेंबर पे हम एप्लीकेबल कर परिबा ना प्राइवेट नहीं प्राइवेट मींस बाय डिफाइनिंग दिस एक्सेस स्पेसिफायर members are accessed within the class where they declare. से क्लास भीतर केवल डिफाइन करी हो जोटी से माने डिक्लेयर करा जाय छै जो क्लास भीतर हम डिफाइन करिवो से क्लास भीतर केवल यूज करि परियो से क्लास भीतर यूज करि परियो पब्लिक टा अछि सब क्लास सब जगह सब पैकेज रे यूज करि परियो सब क्लास पैकेज यूज करियो ना क्लास जहां पैकेज होची अलग जो फोल्डर भीतर हम स्टोर करियो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल बने दैट हां क्लास होची सिंगल ऑब्जेक्ट है कंटेंट पैकेज भीतर हम क्लास करो पैकेज तो हम क्लास करो हम क्लास का जे वैरायटी टाइप क्लास क्लास होची कोन कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट केटा काजे एजर आपका कया था नो कया था जो क्लास का कोन जो पैकेज जो सेटा पर डिफरेंट टाइप के क्लास होती डिफरेंट टाइप क्लास हां ना अलग गोटे पैकेज भीतर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लास हमें डिफाइन करो मोर देन वन क्लास हमें डिफाइन करो तापर होची protected
by defining this access specifier, members are accessed only within the child class. ମୁଁ କେବଳ child class ଭିତରେ को access कर पारिବି। child class हां access कर पारिବି। ମୁଁ ଯଦି protected define କରିବି xyz रे तब केवल abc ମୁଁ access कर पारिବି। सर xyz टा parent class xyz कहूची parent class, abc रा child class। जदि मैं protected define करूची केवल child class रे access कर पारिବି। तो कोठे abc भीतर access हां protected हां by defining this access specifier the members are accessed only within the child class members के लिए कोडा variable और function होची member गोटे क्लास रा मेंबर का को आजियो जो वेरिएबल और फंक्शन हम डिफाइन करबा ता को आजियो मेंबर्स बुझियला तापर होची डिफॉल्ट if no access specifier defined मुझे यदि कौन से access specifier define न करूची no access specifier defined then default accessibility is applied यदि मु किछि access specifier define करिवेनी ताले default access specifier apply हो जेमते कि int a so I am not defining anything that means it is a default access specifier default access specifier माने जदि हमें आ आगरे जो वेरिएबल टा हमें डिफाइन करूचे आ आगरे हमें जदि पब्लिक डिफाइन करिवा नहीं बुझियो किंबा आ आगरे हमें प्रोटेक्टेड डिफाइन करिवा नहीं प्रोटेक्टर डिफाइन करिवा नहीं किंबा आ आगरे हमें जदि प्राइवेट डिफाइन करिवा नहीं ताहले आपको कुहा जीवो डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर हमें जंती लिखु जे कोन फंक्शन जेतरा हमें डिफाइन करबा सपोज डिफाइन करबा void show function यदि void show function डिफाइन करबा इट इज अ डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर बुझे होची हम जो void show अपन जेटा लिखते void show जगह हम void display देखि भाई जहां भी ना दे भाई if no access specifier defined then the default access specifier is applied means जाभा रे डिस्प्ले रा मीनिंग जहां शो रा मीनिंग किछे हां जाभा रे एटा होची ना डिस्प्ले रा मीनिंग शो रा मीनिंग होगा एटा होची ना हमें जहां दे पाए इट इज जस्ट ए नेम function name user defined name you can define anything void show मतलब void display तब int show of display it is not predefined है ना माने predefined नो माने जावा एटा को डिफाइन करिनी एटा हमें डिफाइन करछे हमें ना दोछ हां मतलब जावा एक्चुअली एटा केम डिफाइन करियो हमें डिफाइन करले हो जावा के डिफाइन कर जावा रे किछि फंक्शन अछि जोटा कि आगुरो डिफाइन करा जाय छै प्रीडिफाइन जोटा कहै माने जेतरा जावा प्रोग्राम टा बना है छी एमती सिस्टम println गोटे मेथड सेटा होची प्रीडिफाइन हमें जो लिखु जे void show void display एटा होची यूजर डिफाइन हमें डिफाइन करू छी println टा मतलब प्रीडिफाइन मेथड मैं सेटा केवल जावा तको बनै छी जावा जेतरा बना हला ता भीतर से मेथड टा अछि तो हम तक यूटिलाइज void show हमें जेतले यूजर डिफाइन फंक्शन डिफाइन करिवा हमें जेतले गोटे लॉन्ग प्रोग्राम करू छी ताको हमें स्मॉलर करिया पई हमें सब डिफरेंट फंक्शन डिफाइन करिवा से फंक्शन ना हमें ना दबा शो फंक्शन दबा डिस्प्ले फंक्शन दबा बुझियला
So when you define a default access specifier, if no access specifier defined, then the default accessibility is applied. Means the members are accessed to all classes present in same package. Okay. It is if you define only without any access specifier, then the members are accessed to all the classes present in same package. Without an access specifier, the members Are access to all the classes present in same package. गोटे पैकेज भितर थिबो गोटे मॉड्यूल भितर हमें जिते भी क्लास डिफाइन करबा ता भितर से माने एक्सेस हे कर without access specifier. विदाउट एनी एक्सेस जो जोटा पब्लिक जोटा देखले पब्लिक जो access specifier रो दबाव पड़े हां सेटा लिखिया पड़िबो प्राइवेट लिखिबा को पड़िबो प्रोटेक्टेड लिखिबा को पड़िबो किंतु जदि हमें किछि न लिखुचे सेटा को आजिबो डिफॉल्ट एक्सेस बुझिला next is overriding method. Overriding method means a function defined in the parent class, same function you have to use in the child class. गोटे फंक्शन टा हमें पेरेंट क्लास रे डिफाइन करिवा सेम फंक्शन टा हमें चाइल्ड क्लास रे डिफाइन करिवा तो एठी हमें कोन करिवा चाइल्ड क्लास रे जेतले फंक्शन टा यूज करिवा किछि नुवा फंक्शनैलिटी दबा बुझियो हां सो ओवरराइडिंग मेथड मींस यू कैन रीडिफाइन द function of parent class mo parent class का function टा को redefine करेबी by adding the new functionality by adding the new functionality किछु नुवा फीचर ऐड करिकी ताको मो एनहांस करिबी बुझियला तो सेटा को आजिवो ओवरराइडिंग मेथड बुझियला so when you are using overriding method the name of the function is same return type is same argument list जदि parameter किछि डिफाइन करा जायतिबो सेटा भी सेम रहइबो बुझि होछि नेम सेम रहइबो रिटर्न टाइप सेम रहइबो आर्गुमेंट लिस्ट पैरामीटर भी सेम रहइबो बुझि होछि तीनटा जिंस सेम रहइबो किंतु तार फंक्शनैलिटी डेटा डिफरेंट रहइबो same parent child class with same name return type list define the parent class function defined by adding the functionality. By adding the new functionality, we can redefine the parent class functionality.
और जो स्ट्रिंग मतलब जो स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग का जो है यूज तो स्ट्रिंग का क्या क्या बता यूज स्ट्रिंग टा क्या वाला कौन यूज स्ट्रिंग टा जो हम कंप्यूटर वैल्यू जब दिया है जो नेम का दिया है स्ट्रिंग स्ट्रिंग हो जब हम कैरेक्टर वैल्यू पास करते हैं स्ट्रिंग यूज करें आगे कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करने पे हमें स्ट्रिंग यूज करें मुझे मुझे ये कहल जे कैरेक्टर वैल्यू स्टोर जब हम स्ट्रिंग का मेन पर्पस है कि हम जो व्यक्ति भाग जे एमआईटी एनआईएम एनआईटी जे ना हम जरा एनआईआई एनआईआई के हम सेट पे जो टीटल ना टीटल हम कंप्यूटर सेट पर जब हम जो स्ट्रिंग वैल्यू दे तो टीरे स्पेशल कंप्यूटर स्टोर करियो ना और सेट प्रिंटर जो string means it is stored as much character you want हमें যদি character 4 দবা তাহলে character কোন করিব কেবল fixed set of value বুঝি হচ্ছে কিন্তু যেটা আমি character যদি fixed set of value নব তাহলে আমার কোন হইଯିବ না যদি মু 4 পাস করছি তাহলে 5 নম্বর ক্যারেক্টার শো করিব तो সেটাকে আমি string ইউজ করিব string ইউজ করব আমি as much as character that we want we can store যেতে চাইবা ক্যারেক্টার স্টোর করিবা আমি স্টোর করিব तो जो टीम के जो इनको जब टीम बताओ कौनटा सोच रहा हूँ अगर क्या यूज करा होता CHAR एक जगह लिखा है जी पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग एसएस डुअल ब्रैकेट ये एसएस का लिखा है एसएस से मीनिंग क्या हो SS is a variable SS টা হচ্ছে একটা ভ্যারিয়েবল কমান্ড লাইন আর্গুমেন্ট রে यूजर ଠାରୁ ভ্যালু নবা ପାଇଁ SS यूज করা यूजर ଠାରୁ কমান্ড প্রম্পট যোଉଠି ଆମେ ରନ୍ କରୁଛେ ସେଇଠୁ ଭ୍যাଲୁ ନବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଇ SSR এটা यूज କରିବୁ